محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف، عظمت، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت ہدایت جیسی نعمت سے نوازا، اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہی ہوگا۔ اسی طرح سے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو، اسلام کی تعلیمات کو ہم تک مشقت جھیل کر کے، مصیبت جھیل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے میں جس موضوع پر خطاب کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور آج کے بچے۔ اسماعیل علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جو کہ جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 12 مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو سیرت ہے، وہ سب لوگوں کو تقریباً معلوم ہوگی کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کا ارادہ کیے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھیں گے تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے فرما بردار بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس کے فرما بردار بیٹے تھے، اور اس کی مثال اتنے فرما بردار بیٹے تھے کہ اس کی مثال دنیا انسانیت میں نہیں ملتی، جب سے دنیا قائم ہے اور اب تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسی مثال ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، رب هب لي من الصالحین۔ سب نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب 86 سال کی عمر پر پہنچ گئے اور انہیں کوئی اولاد نہیں دی تو انہوں نے بڑھاپے کے سہارا کے لیے یہ امید رکھی، اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے بلکہ دعا کی، رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں پر 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو کر جب انہیں اولاد نہیں نصیب ہوتی تو اللہ کے علاوہ غیروں کے در پر جاتے ہیں اولاد کے لیے، یا اللہ رب العالمین کا واسطہ پکڑ کر کے واسطے کے ذریعے سے اولاد مانگتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اولاد دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور دوسری چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کو مانگا۔ بہت سے لوگ عام طور پر اولاد کو مانگتے ہیں لیکن نیکی کا ذکر نہیں کرتے کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد کہا پھر اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ابراہیم کو ایسے بچے کی بشارت دی جو بچہ بردبار تھا، عقل مند تھا، دانش مند تھا۔ ہم نے بردبار اور دانش مند بچے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معه السعي، پس جب اسماعیل علیہ السلام یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو بیٹے کی شکل میں اسماعیل نوازا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعي، جب وہ اس عمر کو پہنچے جب وہ اپنی چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا تصغیر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پیار سے کہا، بات ہے ذبح کرنے کی، اور جب پکار رہے ہیں مخاطب کر رہے ہیں تو بہت ہی پیارا کلمہ استعمال کرتے ہوئے بہترین اسلوب کے ساتھ پکار رہے ہیں، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فی المنام،
कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी राय क्या है। गोया कि यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को बतलाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म होता है। तो समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और उन्होंने हुक्म बजा लाते हुए कहा या अबती इफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बा, तुम कर गुजरिए जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। अगर तुम मुझे ज़बह करने का हुक्म दिया गया है तो लिहाजा आप वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। ये बहुत अजीम इताअत और फरमाबरदारी की मिसाल है, जिसकी ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने को कह रहा है कि मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूँ कि ज़बह कर रहा हूँ, और बेटा बिला चूचरा, बिला इनकार किए कहता है कि है मेरे अब्बू जान, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे कर गुजरिए, इन करीब तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। फलम्मा अस्लमा, पर जब बाप और बेटे दोनों राजी हो गए, बाप ज़बाह करने के लिए राजी हो गया, बेटा ज़बाह होने के लिए राजी हो गया, वसल्लहु लिलजबीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को पेशानी के बल पर लिटा दिया, पेशानी के बल पर लेटा दिया। वनादैनाहु या इब्राहिम, ज़बाह ही करने वाले थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुकारा, हमने उसे पुकारा कि ऐ इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया है, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नज़ीज़ुल मुहसिनीन, इसी तरह से हम नेकी करने वाले को बदला अता फरमाते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये जो चीज थी एक खुली हुई आजमाइश थी, ये खुला इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। क्या इब्राहिम जब उन्हें बेटा नहीं हो रहा था और बुढ़ापे में उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा नसीब फरमाया, और जब वो बेटा बालिग होने लगा, बाप का सहारा होने लगा, तो ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कुर्बान करने का, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का हुक्म दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी राजी हो गए और अपने बेटे इस्माइल को ज़बाह करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये खुली हुई आजमाइश थी, वाज़ेह निशानी थी आजमाइश की, वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इब्राहिम को उसके बदले में, इस्माइल के बदले में बड़ा ज़बीहा फिदिया के तौर पर अता किया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और बाद में आने वालों में इसका तज़किरा बाकी रखा। इसका जो ये जो वाक़या है, इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में आने वालों में बाकी रखा। मोहतरम सामिईन किराम, इस आयत करीमा में जो मैं चीज बतलाना चाहता हूँ वो ये कि एक बेटे को, एक बच्चे को अपने वालिद का इताअत और फरमाबरदार होना चाहिए, एक बच्चे को अपने वालिद का इताअत और फरमाबरदार होना चाहिए। अगर वालिद किसी भी चीज का हुक्म दे रहा है, अगर वो मासियत में ना हो, अगर वो गुनाह ना हो, तो उसकी इताअत करना वाजिब और जरूरी है। मोहतरम सामिईन किराम, इसी तरह इस्माइल इस्लाम के इस वाक़ये में एक जिंदगी में एक वाक़या ये भी मिलता है इताअत और फरमाबरदारी का कि फ़क़ाल या इस्माइल इन्ना रब्बका अमरनी, कि इस्माइल इस्लाम थोड़ा जब बड़े हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये हुक्म हुआ कि मक्का में बैतुल्लाह खाने काबा की तामीर करे। रिवायत में सही बुखारी की रिवायत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या इस्माइलू, ऐ इस्माइल, मेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए घर तामीर करूं, एक घर तामीर करूं। क़ाल अति रब्बका, इब्राहिम इस्माइल कहते हैं तो आप अपने रब की इताअत कीजिए। क़ाल इन्नहु क़द अमरनी अन तुईननी अलैहि, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस्माइल, अल्लाह ने मुझे यह भी हुक्म दिया है कि उस घर को तामीर करने में तुम मेरी मदद करोगे। तो इस्माइल इस्लाम कहते हैं इज़न आफ़ला, तब मैं आपकी मदद भी करूंगा। फ़क़ामा, रावी कहते हैं कि यानी वो दोनों खड़े हुए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़ामा, इब्राहिम और इस्माइल खड़े हुए। फजअल इब्राहिम यबनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियाद रखने लगे और इस्माइल इस्लाम इब्राहिम को पत्थर उठा करके देते थे।
मोहतरम सामी किराम, ये भी जो वाक़या है ये बतलाता है कि इस्माइल इस्लाम अपने वालिद इब्राहिम के मुतीओ फरमा बरदार थे। इब्राहिम इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तामीर करना चाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, तो इस्माइल इस्लाम ने इस काम में भी अपने वालिद की इताअत व फरमा बरदारी की, इस नेक काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इससे ये भी मालूम होता है इस्माइल इस्लाम के इस वाक़ये से कि एक मुसलमान को, एक मुसलमान नौजवान को, एक मुसलमान बच्चे को अपने वालिद का इताअत व फरमाबरदार होना चाहिए और अपने वालिद के नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह से तीसरा वाक़या इब्राहिम इस्माइल इस्लाम की जिंदगी में तीसरा वाक़या जिसमें मालूम होता है कि इब्राहिम इस्माइल इस्लाम अपने वालिद के इताअत व फरमाबरदार थे, वो तारीखी रिवायत है कि जब इस्माइल इस्लाम ने निकाह कर लिया कबीले जुरहम की एक औरत से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन रहते थे, मुल्के शाम रहते थे। वो मुल्के शाम से मक्का साल यानी कुछ सालों के गुजरने के बाद आया जाया करते थे। खैरो खैरियत पूछने के लिए इस्माइल और हाजरा की खैरो खैरियत पूछने के लिए आया करते थे। जब इस्माइल इस्लाम की शादी हो गई, निकाह हो गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ सालों के बाद आते हैं, देखते हैं कि इस्माइल मौजूद नहीं है। इस्माइल इस वक्त मौजूद नहीं होते हैं, गायब होते हैं, किसी काम के लिए गए होते हैं। पूछते हैं कि इस्माइल कहाँ है, तो ये इस वक्त इस्माइल इस्लाम की बीवी कहती है कि वो किसी काम से गए हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है जिंदगी का, यानी जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये पूछा तो उस औरत ने, इस्माइल इस्लाम की औरत ने शिकवा किया, शिकायत की कि जो हमारी जिंदगी है वो तंग है, हमारी जिंदगी परेशानी और मुसीबत में चल रही है, इस चीज की शिकायत की। जब इब्राहिम इस्लाम ने बात सुना तो जाते जाते उस औरत से कहा कि जब इस्माइल आएंगे तो उन्हें ये कहना कि अपने घर की चौखट तब्दील कर ले, अपने घर की चौखट तब्दील कर ले। चुनांचे कुछ देर बाद इस्माइल इस्लाम आते हैं और उनकी बीवी वो कहती है कि फुला शख्स आए थे, ऐसी ऐसी शक्ल के थे, और वो कह रहे थे, इस्माइल इस्लाम ने वो कह रहे थे कि अपने घर की चौखट बदल लेना। उन्होंने हालचाल लिया और जिंदगी बसर करने का तो वो पूछा, कैफियत पूछी, तो मैंने ये बतलाया और कहा कि अपने घर की चौखट बदल लीजिए। तो इस्माइल इस्लाम ने कहा अपनी बीवी से कि वो मेरे वालिद थे और उन्होंने आपको तलाक देने का हुक्म दिया है। इस्माइल इस्लाम उन्हें तलाक दे देते हैं और उन्हें घर रवाना कर देते हैं उसके घर में। इस वाक़ये से मालूम होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कितना ही ज्यादा मुतीओ फरमाबरदार थे कि वालिद के कहने पर वालिद ने सिर्फ इशारा किया था कि अपने चौखट बदल ले, और इस्माइल अलैहिस्सलाम उसे समझ गए कि अल्लाह मेरे वालिद ने तलाक देने का हुक्म दिया है। क्योंकि इस्माइल इस्लाम नबी थे, नबी बड़े दर्जे का होता है, इसलिए जो बीवी होनी चाहिए वो भी नेक और सालिया होना चाहिए, शिकवा शिकायत वाली नहीं होना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इब्राहिम इस्लाम ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। चुनांचे इस्माइल इस्लाम अपनी इस बीवी को तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी करते हैं। इस वाक़ये में भी इसमें मालूम होता है इस वाक़ये से कि इस्माइल इस्लाम अपने वालिद की इताअत व मुतीओ फरमाबरदार थे, अपने वालिद की हर बात को कबूल करते थे और उसे अंजाम देते थे। मोहतरम सामिक़राम, लेकिन देखा यह जाता है कि आज के बच्चे अपने वालिदैन के बहुत नाफरमान हैं, जबकि शरीयत हमें बतलाई है, शरीयत ये बतलाती है कि अल्लाह और उसके रसूल के हक के बाद अगर किसी का हक है तो वालिदैन का हक है। शरीयत ये बतलाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी, ये वालिदैन की नाराजगी और वालिदैन की रजा पर मौकूफ है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर वालिदैन राजी हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होगा, अगर वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज होगा। शरीयत हमें बतलाती है कि वालिदैन की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाह है। शरीयत ऐसे लोगों को मलऊन करार देती है जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। तो गोया कि शरीयत ने हर उस शख्स को जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन की बात नहीं मानते या वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं,
बड़ी वईद सुनाई है, कि वो बड़ी वईद सुनाई है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ अक्सर जगहों पर जहाँ अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना, कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और उसके बाद कहा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी इबादत के बाद कहा कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। उसी के बाद दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना, कि ऐ नबी कह दीजिए कि लोग आओ, मैं तुम पर ऐसी चीजें पढ़ कर सुनाऊं, मैं तुम पर ऐसी चीजें तिलावत करूं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर हराम की है। वो ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक को जिक्र करने के बाद वालिदैन का हक का जिक्र किया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इसी तरह से एक और जगह फरमाया, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। और एक और जगह फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने एक फैसला सुना दिया है, तेरे रब ने एक फैसला सुना दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जगह ज्यादातर जगहों पर अपनी इबादत को जिक्र करने के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। आप मुसल्लियों से गुजारिश है कि आप थोड़ा आगे हो जाए, ताकि आगे हो जाइए ताकि पीछे वाले मुसल्ली बैठ सके। जी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देती है शरीयत इस्लामिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है और कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे पास वालिदैन मौजूद है, उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुम औफिन, तो ऐसी हालत में बुढ़ापे में उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें उफ तक ना कहो, वला तनहरुमा, और ना ही उनको झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे अच्छी बात करो, अच्छी गुफ्तगू करो, बात करने का तरीका और सलीका अच्छा अपनाओ। उसके बाद कहा, वक़्तिद लहुमा जनाह अद्दुल मिनर रहमा, और अपने वालिदैन पर रहम करते हुए अपने शफ़क़त के बाजू को झुका दो। वकुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हुए कहो कि ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर उसी तरह से रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने मेरे बचपन पर मुझ पर रहम फरमाया और मेरी परवरिश की। मोहतरम सामीन इकराम, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर वालिदैन की अहमियत उजागर की है। अगर वो बच्चा जो बच्चा वालिदैन के हुकूक को समझता हो, शरीयत इस्लामिया को पढ़ा हो, दीनी तालीम से बहरा हो, तो ऐसे बच्चे वालिदैन के हुकूक को समझेंगे, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो दीनी तालीम से बेबहरा हैं, ऐसे बच्चे जो दीनी तालीम से दूर हैं, वो बच्चे वालिदैन के हुकूक नहीं जानते। असली जो तालीम होती है, जो स्कूल की तालीम होती है, उसमें वालिदैन के हुकूक का तज़किरा नहीं होता, वालिदैन की अज़मत और कदर का जिक्र नहीं होता, इसलिए वालिदैन की अज़मत और उसकी कदर को वो नहीं पहचानते। एक दीनी बच्चा, मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा अपने वालिदैन की कदर करता है, अपने वालिदैन की अज़मत और बड़ाई को समझता है कि शरीयत ने वालिदैन को कितना बड़ा, कितना अजीम करार दिया है, वालिदैन के हुकूक को कितना बड़ा करार दिया है। वालिदैन के नाफरमानी करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मलऊन करार दिया है। मोहतरम सामीन किराम, आज के बच्चे देखा जाता है कि आज के बच्चे दीनी तालीम से बेबहरा हैं, गाना सुनते हैं, गालियां जबानों पर उनकी रहती हैं। ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं, वो भी मुसलमान के बच्चे। इसी तरह से हम देखते हैं मुआशरे में पाया जाता है कि मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ, मुशरिकों के साथ निकाह कर बैठती हैं और वो मुर्तद हो जाती हैं। कई मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं। उनकी सबसे बुनियादी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो दीनी तालीम से
दीनी तालीम से बेबहरा रहती हैं, उन्हें दीनी तालीम का इल्म नहीं होता, वो तौहीद और शिर्क नहीं पहचानती, तौहीद का माना नहीं समझती, शिर्क का माना नहीं समझती कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। अगर वो बच्ची जानती कि शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी माफ नहीं फरमाएगा, वो शिर्क से नफरत करने लगेगी और मुशरिक से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगी, तो वो बच्ची कभी भी गैर मुस्लिम के साथ, मुशरिक के साथ कभी भी निकाह नहीं करेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे, दीनी तालीम से आरास्ता करे, पैरास्ता करे और अपने बच्चों को दीनी मदरसे में दाखिला कराए ताकि बच्चों को अपने वालिदैन की अहमियत से मालूम हो। दीनी तालीम जब सीखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत समझेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अज़मत को समझेंगे, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, मुआशरे में जो लोग हैं पड़ोसी रिश्तेदार उनकी कदर और मंजिलत करेंगे। लिहाजा ये बात जरूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे, दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करे। मोहतरम सामिक़राम, आज बच्चों से पूछा जाए कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, ईमान के अरकान कितने हैं, वो बच्चे नहीं बता पाते। अगर उनसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सवाल किया जाए या आईफोन या मोबाइल के ताल्लुक से, ब्रांड के ताल्लुक से तब सवाल किया जाए मोबाइल की कंपनियों के बारे में, तो फौरन जवाब देते हैं। लेकिन सहाबा की सीरत, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अंबिया की सीरत से वाकिफ नहीं होते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की इज्जत को नहीं समझते। इसलिए बाद मुसलमान बच्चों की जानिब से ये भी सरदर्द होता है कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे जब वो दीन से खुद दूर होते हैं, खुद 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें हैं, खास तौर पर फजर की नमाज, उससे वो दूर रहते हैं। फजर की नमाज में मुसलमानों की मस्जिदें खाली होती हैं, तो ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करेंगे जब वो खुद दीनी तालीम से दूर रहते हैं। मोहतरम सामने किराम, तो जरूरत इस बात की है कि हम भी दीनी तालीम को मजबूती से थामे रहे, उलमा से रुजू हो, उलमा की सोहबत में रहे, ताकि हमें दीनी तालीम हासिल हो और अपने बच्चों को भी मदरसों में दाखिल करें, मकातिब, छोटे छोटे मकातिब में दाखिल करें, ताकि वो बच्चे इस्लाम के अरकान समझे, ईमान के अरकान समझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात को पहचाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत उन्हें हासिल हो, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अच्छी तरह से इबादत कर सके। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में ईमान के बाब से पहले इल्म का बाब बना, कहा बाबुल इल्मी क़ब्ल अल ईमानी, कहा वल अमली, कि इल्म का बाब ईमान लाने से पहले और अमल करने से पहले। और इमाम बुखारी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल से दलील बकी, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को जान लो, फ़अलम, इल्म का लफ्ज़ चले आया, इस बात को जान लो कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर कोई शख्स मोमिन इल्म की बुनियाद पर ईमान लाएगा, अगर उसे दीनी तालीम, उसके अंदर दीनी तालीम मौजूद होगी, वो अल्लाह उसके रसूल की हकीकत को जानेगा, तो कभी मुर्तद नहीं होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। इसी तरह से मोहतरम सामने किराम, अल्लाह यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद के बहुत ज्यादा मुतीओ फरमा बरदार थे, अपने वालिद के हुक्म को मानने वाले थे, इसकी कई असबाब थे, इसके कई असबाब थे। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, हाजिरा अलैहिस्सलाम उनकी बीवी थी, जिन्होंने अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश की थी, उनकी तरबियत दीनी तरीके से की थी, और इस्माइल के दिलों में वालिद की अहमियत, वालिद की अजमत और कदर और मंजिलत को उन्होंने बयान किया था। इसलिए इस्माइल इस्लाम अपने यानी वालिदैन के हुकूक को समझते थे और इसीलिए वो अपने वालिदैन के मुतीओ फरमा बरदार थे। सब ये जानते हैं, जरूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत करें। औलाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत है, अमानतदार है, अमानत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अमानत है। लिहाजा एक मुसलमान को बच्चों की अच्छे से तालीम और तरबियत करनी चाहिए, उनकी अच्छे से परवरिश करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे दीनदार बने। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पे औलाद को नेमत करार दिया है और कहीं पे फितना करार दिया है। क्योंकि अगर औलाद नेक होगी तो दीनदार होगी, तो ये अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक होगी। तो ऐसी सूरत में औलाद नेमत होगी।
قرآن مجید میں نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین بے شمار تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اگر توبہ استغفار کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لڑکے ہیں، جو اولاد ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہیں، لیکن جب اولاد بدبخت ہو جاتے ہیں، جب وہ بد کردار ہو جاتے ہیں، جب وہ برے ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، تو وہ والدین کے لیے جہنم ہو جاتے ہیں۔ اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے وہ بوجھ بن جاتے ہیں، اپنے والدین پر بوجھ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے کہ ایسے اولاد جو اپنے والدین کو دین سے دور رکھ دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے جو مال ہے، جو تمہارے اولاد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کرے تاکہ وہ اولاد بڑھاپے میں سہارا ہو، تاکہ اولاد کل مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اسے ثواب ملنا ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تین چیزیں باقی رہتی ہیں تو اس کا ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلا کہا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اگر وہ کوئی مدرسہ بنا رکھا ہو، کسی مسجد تعمیر کر رکھا ہو تو اور وہ مر گیا ہو، جب تک مسجد اور مدرسہ موجود ہوگا لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کہا علم ينتفع به، اور دوسری چیز ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، وہ کوئی کتاب لکھ دے یا لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو مرنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ عمل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے انہیں ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے تیسرا بتایا اور ولد صالح يدعو له، کہ تیسری حالت ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنی ایسی اولاد چھوڑ کر رکھا ہو جو دیندار ہو، نیک ہو، مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، دعائیں مغفرت کرے، تو ایسے والدین کو بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کی اچھے سے اچھے تربیت کرنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہا اللہ رب العالمین کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو بھی بچا لو، پہلے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، واہلیکم، پھر کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جس آگ میں انسان داخل ہوں گے اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ ایک مسلمان اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرے، ان کی بھی اچھے سے تربیت کرے تاکہ ان کے بچے، ان کے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول وکلکم راعٍ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ فالامام راعٍ وهو مسئول عن رعیته، تو امام جو حکمراں ہے، جو حاکم ہے، وقت ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہوگا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور ایک آدمی اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہے، وهو مسئول عن رعیته، اور کل قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها، اور ایک عورت اپنی شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتها، اور اس عورت سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مؤاخذہ کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کی، امانت داری اپنایا کہ نہیں، یا اپنے بچوں کی پرورش دینی کی کہ نہیں کی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے محترم سامعین کرام، مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دینی
दीनी तालीम करें, दीनी तरबियत करें। औलाद की तरबियत किस तरह से करेंगे इसका भी सबूत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत किस तरह सीखी। कुरान और हदीस का जब हम मुताला करेंगे तो असबाब हमें मिलते हैं, उन असबाब को अगर अपनाएंगे और अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो भी इंशाअल्लाह वो भी इंशाअल्लाह दीनदार और नेक होंगे। हाजिरा अलैहिस्सलाम और हाजिरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की जिस तरह से तरबियत की है, अगर उसी तरह से हम तरबियत करेंगे तो हमारे औलाद भी नेक होंगे, हमारे औलाद भी मिसाली बनेंगे। मोहतरम सामीन इकराम, शरीयत इस्लामिया का जब हम मुताला करेंगे, कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होता है कि नेक औलाद यानी औलाद की तरबियत की इब्तिदा ये बीवी के इंतखाब से शुरू होती है कि अगर आदमी जवान हो जाए, जवान होने के बाद अगर वो शादी करना चाहता है तो वहाँ से नेक औलाद की तरबियत की इब्तिदा होती है। शरीयत इस्लामिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कहल मरअतु लिअरबइन, एक औरत का निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक औरत का निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। लोग 4 चीज दे करके औरत से निकाह करते हैं। पहले फरमाया लिमालिहा, उसके औरत का माल देख करके, दूसरा फरमाया वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देख करके, और कहा वली हसबिहा, उसका खानदान और नसब देख करके, और चौथी चीज कहा वली दीनिहा, औरत की दीनदारी देख करके निकाह किया जाता है। फर बिदातिद्दीन, दीनदारी के जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीनदारी के जरिए से कामयाब हो जाओ, यानी दीनदार औरत से निकाह करके कामयाब हो जाओ। तरिबत यदाक, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूद हो। इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है कि एक मुसलमान को ऐसी बीवी का इंतखाब करना चाहिए जो नेक हो, सालिया हो। आप लोग को मालूम है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने की है, क्योंकि जब वो शेर ख्वार बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, तो इब्राहिम ने अपने बेटे को ऐसी वादी में छोड़ दिया, ऐसे मक्का की एक ऐसी वादी में छोड़ दिया जो उस वक्त बेआबो गया थी, जहाँ ना खेती होती थी, ना किसी किस्म का दरख्त मौजूद था, और ना ही कोई आबादी वहाँ पे मौजूद थी, बेआबो गया जगह थी। और ऐसी जगह पे छोड़ के चले गए। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की तरबियत की। गोया कि इससे मालूम होता है कि माँ का किरदार बहुत ज्यादा अजीम होता है, बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार बहुत अजीम होता है। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की तरबियत की और इस्माइल अपने वालिदैन के मुतीअ फरमा बरदार बने। लिहाजा एक मुसलमान जब निकाह करे तो नेक और दीनदार की बुनियाद पर निकाह करे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम में से किसी के पास खितबा है, ऐसा आदमी खितबा दे जिसके दीन से, जिसके अखलाक से तुम राजी हो, इल्ला तफअलू फज़व्विजू, तो तुम उससे निकाह कर लो, उससे शादी करा दो। व इल्ला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फसाद फैल जाएगा और फितना फैल जाएगा। आज ये देखा जाता है कि शादी करना बहुत बोझ हो गया है। शादी करना इतना मुश्किल लोगों ने बना दिया है, खास तौर पर मुसलमानों ने, कि मुसलमान औरतें आज बैठी हुई हैं, उनकी 34-35 साल की अपने घरों पे बैठी हुई हैं और वालिदैन निकाह करने की ताकत नहीं रखते, इस्तिताअत नहीं रखते। इसी तरह से गोया की इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी और अखलाक की बुनियाद पर निकाह करने का हुक्म दिया है। अगर कहा कि अगर दीन और अखलाक की बुनियाद पर निकाह नहीं किए, अगर तुम उसके अखलाक और दीन से राजी हो और निकाह नहीं किए, तो गोया की जमीन में फसाद मच जाएगा। जब कोई रिश्ता आता है तो आदमी माल देखता है, खूबसूरती देखता है, हसब व नसब देखता है, लेकिन दीनदारी नहीं देखता। कहता है कि अगर ये यानी उसके पास माल है, खूबसूरती है, वो आ जाएगा, या वो आ जाएगी निकाह के बाद, वो अखलाकमंद हो जाएगी, दीनदार हो जाएगी। वो लोग यानी गोया की दीन को तरजीह नहीं देते, बल्कि माल दौलत को तरजीह देते हैं, खूबसूरती को तरजीह देते हैं दीन पर। तो जब दीन पर दुनियावी मसलहत से गालिब आ जाएगी, दुनियावी मफाद गालिब आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में फसाद मचना वाजिब है, लाजिम और जरूरी है। मोहतरम सामी किराम, तो सबसे पहला यानी सबब जो इख्तियार करना है वो ये कि नेक बीवी से निकाह करना है। दूसरा सबब जिसे नेक औलाद
کے لیے دعا کرنا, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربی ہبلی من الصالحین, اللہ رب العالمین سے اولاد مانگا تو نیک کے ساتھ مانگا کہ نیک اولاد عطا فرما دے, کیونکہ اولاد جو نعمت بتلائی گئی ہے اس کی تکمیل نیکی کے ساتھ ہی ممکن ہے. اگر اولاد نیک نہیں ہوگی, بدخلق ہوگی, تو ایسی صورت میں وہ نعمت نہیں بلکہ زحمت ہو جائے گی. اسی طرح سے بچوں کی تربیت میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ دینی ماحول میں رہائش اختیار کرنا چاہیے. ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں لوگ ایسے لوگ رہتے ہوں جو تمام کے تمام مشرک ہوں, یا ایسی جگہ جہاں مسجد و مدرسہ ہے وہاں پہ رہائش اختیار کرنا چاہیے جہاں ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کر سکے. ایسی جگہ رہائش اختیار کرنا چاہیے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ ایسی جگہ کو اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں دنیوی مفاد ہوتا ہے, جہاں مال کی کثرت اور مال کمانے کی کثرت ہے اور وسائل پائے جاتے ہیں. ایسی جگہ پر لوگ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ مسجد ہے کہ نہیں, یہاں پہ کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی کہ نہیں. ایسی جگہ دیکھ کر کے انتخاب کر کے آدمی کو سکونت اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے, اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آگے نکلے اور ایسی اتنا آگے بڑھے کہ وہ آگ سے اوجھل ہو گئے, تو اوجھل ہونے کے بعد دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون. کہا, دعا کی کہ اے ہمارے رب, اے میرے رب, میں نے اپنے بچوں کو, اپنی ذریت کو ایسے وادی میں بسا دیا ہے غیر ذی زرع, جہاں پہ نہ کھیتی ہے, عند بیتک المحرم, تمہارے حرمت والے گھر کی طرف پاس, تمہارے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنے بچوں کو, اپنی ذریت کو میں بسا دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب, ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہاں پہ نماز قائم کریں گے, یہاں پہ نماز قائم کریں گے. فجعل افئدۃ من الناس, تو اے اللہ لوگوں کی دلوں کو اس طرف پھیر دے, لوگ اس طرف آئے, لوگوں کی آبادی یہاں پہ ہو, لوگ یہاں پہ جمع ہو. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور انہیں رزق عطا فرما, پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کرے, اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. محترم سامعین کرام, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین, اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیک اولاد چاہیے, اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے, ایسے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں دینی مال ہو, جہاں مدرسے ہوں, جہاں مسجدیں ہوں, جہاں پہ دینی تعلیم کا حصول ممکن ہو, کتاب و سنت کی جہاں تعلیم دی جاتی ہو, تاکہ بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے دنیوی مفادات اور جو دنیا کی غرض ہے اس سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ دنیا مفادات ہوتے ہیں. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے ان اسباب میں سے, جو تربیت کے اسباب میں سے کہ نیکی کے کاموں میں اولاد کو شریک کرنا چاہیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے, اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے, تو اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی شامل کیا. اسماعیل علیہ السلام پتھر دیا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیاد رکھتے تھے. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے اولاد کی تربیت میں سے ایک اہم سبب یہ ہے, سب سے اہم سبب یہ ہے کہ جو کچھ آدمی والد یا والدہ اپنے بچوں کو کہتی ہو, جو کچھ کرنے کا حکم دیتی ہو, اسے وہ کرتا ہو, اسے وہ انجام دیتا ہو. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے. اسی طرح سے بہت سے والدین ایسے ہیں جو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے, لیکن اپنے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے اور وہ دینی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک رہے, اپنا گالی دیتے ہیں اور بچوں کے تعلق سے امید رکھتے ہیں کہ وہ گالی نہ دے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفت نہیں تھی, وہ والد تھے جو کچھ کرتے تھے اپنے بچوں کو اسی چیز کا حکم دیتے تھے. جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم, کہ اے ابراہیم تو فرما بردار ہو جا, تو فرما بردار ہو جا, تو اسلام لے آ. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم نے کہہ دیا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا, رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, اور اسی بات کی مسلمان ہونے کی وصیت ابراہیم نے, یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کی, یہی وصیت کی. کہا یا بنیا ان اللہ اصطفى لكم الدین,
कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, इस दीन को पसंद कर लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लिहाजा तुम मरते दम तक मुसलमान ही रहना, इस्लाम पर कायम रहना, इस्लाम पर जमे रहना। लिहाजा इस आयत से मालूम होता है कि इब्राहिम की एक वालिदैन को अपने बच्चों को उसी चीज का हुक्म देना चाहिए जो चीज वो कर रहे हैं, जिस चीज को वो अमल में लाए हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम लोग ऐसी बात क्यों कहते हो जो कुछ तुम नहीं करते हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक ना सबसे ज्यादा नापसंदीदा है कि तुम ऐसी बात कहो और जिसे तुम खुद नहीं करते हो। लिहाजा मुसलमानों को इसका एहतमाम करना चाहिए। मोहतरम सामईन किराम, आप लोगों के सामने मैंने इस्माइल इस्लाम जो कि इब्राहिम के एक सच्चे और मुती और फरमाबरदार बेटे थे, एक मिसाली बेटे थे, उसके ताल्लुक मैंने आप लोगों के सामने बयान किया और ये भी बतलाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किन असबाब के जरिए से अपने बच्चों की तरबियत की, हाजिरा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत किन असबाब की बुनियाद पर की। उन असबाब को हमें अपनाना चाहिए और अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करना चाहिए। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब मैं इस मिंबर पे बैठा तो देखा कि एक सफ से लेकर के 1.5 सफ तक के लोग आए थे। ये बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है कि मुसलमानों की जमात जुमा के खुतबे के लिए इतना लेट में आए, ताखीर के साथ आए, बहुत अफसोस की बात है। शरीयत इस्लामिया ने इस पर रग़बत दिलाई है, तरगीब दिलाई है। जा वजह बताया जाता है कि ज़ोहर की जो 4 रकात है, उस 4 में से 2 रकात जो है वो खुतबे के लिए मुक़र्रर की गई है, उसके बदले में खुतबा है, और 2 रकात इसे फर्ज नमाज रखी गई है, जुमा की नमाज रखी गई है। लिहाजा मुसलमानों को जल्दी से जल्दी आना चाहिए। इसी तरह से आप लोग ये जानते भी हैं, शरीयत ने भी बतलाया है कि मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते बैठे होते हैं। जो लोग पहले पहुंचते हैं, जो लोग अजान से पहले पहुंचते हैं, मिंबर पर खतीब के बैठने से पहले पहुंचते हैं, उनका नाम फरिश्ते रजिस्टर में नोट करते हैं। लेकिन जैसे ही खतीब मिंबर पर बैठ जाता है, वैसे ही वो अपने रजिस्टर को बंद कर लेते हैं और वो ऐसे लोग जो बाद में आते हैं उनका नाम इसमें शामिल नहीं होता। लिहाजा मुसलमानों को इसका एहतमाम करना चाहिए, आप लोग को इसका एहतमाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पहले आना चाहिए। शरीयत ने भी रग़बत दिलाई ताकि लोग जुमा के खुतबे को सुनने के लिए जल्दी करे कि जो लोग पहले आते हैं, ऐसा शख्स जो मस्जिद में जुमा के दिन पहला आता है, उसको इतना सवाब मिलता है जितना कि उसने एक उठनी की कुर्बानी पेश की। ये दूसरा जो शख्स आता है उसके बारे में कहा गया उसे इतना सवाब मिलेगा जितना एक गाय की कुर्बानी का सवाब होता है। इसी तरह से तरतीबवार बताया, यानी शरीयत ने जुमा में जल्दी आने पर उभारा है, तरगीब दिलाई है। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि जब खुतबा शुरू हो जाता है, दरमियानी खुतबा में हम मस्जिदों को हाजिर होते हैं, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। यही एक खुतबा होता है जिसके जरिए से मुसलमानों को दीनी तालीम हासिल होती है। लिहाजा मुसलमानों को जुमा के खुतबे में जल्दी आना चाहिए और पूरा खुतबा सुनना चाहिए, और जो भी सवाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उस सवाब का मुस्तहिक बनना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। जो भी मुसलमान गुनहगार हैं उन मुसलमानों को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। हम गुनहगार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श दे, आमीन। जो भी मुसलमान परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की परेशानी को दूर फरमा। जो भी मुसलमान मकरूज हैं, ए अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी का रास्ता बना दे। ए अल्लाह जो भी मुसलमान माली तौर पर या इसी तरह से अमन के तौर पर बेहाल है, खास तौर पर गजा के मुसलमान जिनकी माल इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं हो पा रही है, जो गैर अमन जगह पे है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका कोई रास्ता निकाल दे, उनको मामून और महफूज बना दे, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी मुसलमान बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى وأعز وأكبر والله يعلم ما تصنعون.